you hear me? Online people? Okay, okay, fine, fine. So, my name is Varaprasad. I'm a qualified chartered accountant, and I would like to discuss you about corporate auditing topics. So, first of all, let us discuss what is audit, why it is necessary. So, if you are large, there are many big companies where management is different and shareholding is different. So, where shareholders, how they will rely without management ultimately prepare internally their financials. So there should be some external person who should certify them, how they can rely on them. So by which the process, there should be some standards to establish that reliance. The whole concept of auditing has enhanced, it has established. So let us think. Okay. So previously the audit has been only related to financials and accounts, but now there are many laws which we need to comply. There are many statutes which the companies, because of different what I can say, different frauds and errors happen, big frauds, because of which they have been established different laws which auditor need to check compliance. So nowadays it is not just certifying financials. He has to check compliance with laws, rules, regulations. Different things are there. Performance. He has to check tax compliances. He has to check, and different things he has to check. So he has to not related to only financial information. He has to take all non-financial data. He has to cross verify and he has to certify them. And then let us have an example. If you went for a restaurant, you have some 10-20 friends, you have ordered different items. At the end you will check the bill. Someone will check the bill and you will tell, okay, what we have ordered is what is there. That is same like that. Whatever the transactions happen in an organization, the auditor will check whatever is happening, whether it is as per company policies or not. There are certain policies, standards, different things, whether it has been happened according with the policies, whether the controls are being followed. Then the transactions and the financial amounts, he will certify the figures after checking all these things. And let us see the definition of audit. So audit. First of all, as per our discussion, there should be an independent person. The auditor must be independent person. He should not be internal to the organization. Why? Because if he is internal, someone might influence from the organization. So he should be an external person. So audit should be conducted by an independent person. He is different from the entity who is external from the entity. So it becomes ultimately independent examination. So what he will examine? Financial information. Information of an entity. It is whether profit oriented or not. It can be, size can be small, big, irrespective of its size, whatever it may be. So the entity may be profit oriented or not. And also irrespective of its size.
why he is conducting all this examination and why he is conducting all this? To express an opinion. Opinion. How? So for all these things, he will express an opinion whether the financial statements reflect true and fair view. The true and fair view, the word itself you need to notice, true and fair. He is not saying true and correct. Correct means he has to certify. How we can keep this? Fair means he will tell that maximum percentage of information that is presented in the FS is correct. He will not say total information. He will just say maximum information presented in the FS is correct. So here comes the concept of materiality. So what is materiality? Materiality means exactly. So whatever information that influence the decision making of users of FS. Making of users of FS. Okay. So users of FS. So who can be the users of FS? Who can be the users of FS? Shareholders हो सकता है, क्रेडिटर्स जो हमको गुड्स सर्विसेज दिया है, और गवर्नमेंट हो सकता है, हम उसको टैक्सेस पे करना होता है, और इन्वेस्टर्स हो सकता है जो हमको पैसा देगा, और हाँ एम्प्लॉयज़ हो सकता है जिसका हम कॉम्पेंसेशन देगा, रेम्यूनरेशन देगा, उन लोग को उसका एम्प्लॉयमेंट का सिक्योरिटी देख लेता है. सो इस यूज़र्स को डिफरेंट उन लोग ये यूज़र्स एफएस में रिलाई करने के लिए एक ऑडिट होना चाहिए उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन का. सो लेट अस थिंक व्हाट इज एफएस, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. So what are the components of financial statements? Balance sheet, next profit and loss account, next cash flow statement, notes to accounts. So financial position, assets and liabilities, whether on the date whatever management has presented, first इसका financial prepare करने का responsibility किसके पास होता है? कंपनी के पास. कंपनी मतलब मैनेजमेंट. So it is the responsibility of the management to prepare financial statements. So management prepare करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके, इसमें सो मैनेजमेंट फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करने के बाद इसमें रिप्रेजेंटेशंस देगा. रिप्रेजेंटेशन, हमारे पास इतना एसेट्स है, इतना लायबिलिटी है, ये हमारा रेवेन्यू है, ये हमारा प्रॉफिट है, ऐसा रिप्रेजेंट है, ये हमारा एक्सपेंस है, जो एक टीपी फॉर्म में या फिनेंशियल जो कंपनी का फॉर्मेट होगा या उस फॉर्मेट में हमको एक फिनेंशियल्स प्रिपेयर करके उस फिनेंशियल्स को हम ऑडिट करके
ऑडिट किस तरफ करेगा, हम मटेरियलिटी यूज करके। मटेरियलिटी मटेरियलिटी कैसे डिटरमाइन करेगा ये बाद में हम देख सकते हैं। सो मटेरियल मटेरियल कौन से, मतलब मटेरियल अगर वो अमाउंट मटेरियल है तो उसको ऑडिट करके हम एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर देते हैं ये मैक्सिमम टू इन ऑल मटेरियल एक्सपेक्ट्स। सो what are the objectives of audit, overall objectives of auditor, objectives of auditor, what are the overall objectives of auditor? uh, he will express, he will ensure that he will obtain reasonable assurance. Reasonable assurance that FS is free from material misstatement. Free from material misstatement. First we need to learn this misstatement. What is a misstatement? False statement, okay. Wrong amount disclosure. So, FS have to be prepared with some standards actually. There are some accounting standards, there are some guidance notes for which a transaction need to, how a transaction need to be presented, disclosed, and how some information relating disclosures have to be made. Okay. So whether as per, that is called, let us name it as generally accepted accounting principles, GAAP. Whether FS are prepared in all material aspects and whether the FS is prepared in accordance with GAAP. A short form of the generally accepted accounting principles. So overall objective, first objective is to obtain reasonable assurance. Why reasonable assurance? The next question is just a wild guess. क्या हो सकता है reasonable assurance? Why reasonable? Just to said this is the materiality. You are only checking material transactions, those influence the decisions of users. So if you are checking only material transactions, you cannot give overall, you cannot certify overall. छोटा छोटा transactions हो सकता है जो material नहीं हो सकता है. So you cannot expect complete assurance, absolute assurance you cannot give. And there are some inherent limitations of audit. Inherent limitations of audit. Because of these inherent limitations of audit, you cannot give absolute assurance. You can only give reasonable assurance. So what is assurance? Assurance, simple meaning you can, assurance means to provide confidence on it. You are reassuring it that this is correct, this way is correct, or something. So you are giving an assurance. So you can give only reasonable assurance, you cannot give absolute assurance because of inherent limitations of audit. So what is the second objective? Once you have obtained an assurance, what you will do? Express an opinion. So to express an opinion, it is the second objective. So he cannot express directly. There are some standards. As per that standards, he has to perform audit. As per that standard requirement, you have to make a report. So to express an opinion through his audit report, in accordance with SCS, standards on auditing.
Okay. So next, uh, just discuss this point. What is material misstatement? Just mention misstatement means something wrong, anything. Let us keep it in book definition. So any transaction or account balance or transaction or account balance or any disclosure, if there is in difference between the amount that is to be disclosed as per the generally accepted accounting principles and as per the amount disclosed in financial statements. Let us think asset, the value of the asset to be capitalized is 200 rupees, but the amount they have calculated and disclosed as per AS10 is 190 rupees. They have missed some expense, they have wrongly classified and they have charged the 10 rupees to PNL. It is incorrect, actually it is a misstatement. That misstatement, if it is there is a difference and that is material as per your materiality determination, you will determine materiality by applying a benchmark on certain either profit or depending on the nature of the industry, you will determine the benchmark. And if it is material, then this misstatement is called material misstatement. So just look into what we have covered up. So broader perspective, first we will start with here. Actually we can understand this subject as it is, but if you want to gain marks you need to write subject wording, so you need to prepare this actually. So I would like to I will highlight what you have to write. Based on that you have to read it regularly so that you will adapt to the wording. So broader perspective, come to the 549 page number, broader perspective. See, as per Institute of Chartered Accountants of India, second paragraph, you highlight from the Institute of Chartered Accountants of India, auditing is a systematic and independent examination of data, statement, records, operation and performance. Systematic and independent examination. So you got it right, why it is necessary to audit. What you will audit is based on the change in modern environment. It has been updated. Previously we have just auditing accounting records. Now it has been updated and you are just examining data, performance, operations also. As per SA 200 we are already discussed. Third paragraph, as per SA 200. An audit is an independent examination, that is also important. We have covered that also. And next we will discuss about essential features of auditing. So throughout the class you have heard all this, right? So what are the features of audit? So one, we have discussed, due to change in modern environment, we are not only auditing financial data, we are also auditing non-financial data also. We need to cover. So first feature is that financial and non-financial data.
examination of financial and non-financial data, first feature. So second, before doing this, let us check out pure audit procedure. Let us see the audit process. So process of audit. Audit. So ultimately हम क्या करना है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना है. ओपिनियन के लिए हम एक जजमेंट में आना है. सो वी नीड टू फॉर्म जजमेंट. नहीं तो लेट इट कीप इट लाइक दिस, कंक्लूजन. इसके लिए हम क्या करना है, एविडेंस गैदर करना है. एविडेंस. सो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. इसके लिए हम एक कंक्लूजन, हर एक फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में कंक्लूजन ड्रा करना है. फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दिस एग्जांपल. हम अकाउंट्स रिसीवेबल ऑडिट कर रहे हैं. अकाउंट्स रिसीवेबल में से उसमें डेटॉर को पेमेंट इतना करना है, डेटॉर्स 1000 रुपीज पेमेंट ऐसे बैलेंस शीट में डेटॉर्स 1000 रुपीज ऐसे दिखाया है. सो हाउ विल यू express this 1000 rupees is correct amount in the financials? So we will perform some audit procedures. We will obtain external confirmation. We will write a letter to the third party who have to pay to us, whether you are liable to pay 1000 rupees to us. We will obtain external confirmation, and we will perform recalculation. We will take opening balance of the debtor, sales made during the period, payments received during the period, and we will obtain a closing balance. We will check whether the closing balance of the debtor is matching or not. So after doing all this process, these are called, let it be, audit procedure. Audit procedure. Audit procedure का point, actually audit procedure किधर होता है? ये पेज नंबर 606. Analytical procedure. There are two types of audit procedures. One are 606. Analytical procedure. Concept of analytical procedure. There are different audit procedures actually. Okay. Just this is a brief introduction. We are not into the topic actually. So audit procedures will be performed. So how will you determine audit procedure? So you need to do risk assessment, whether this area is risky or not, so that you can determine the nature, timing and extent. So there are different types of audit procedures. So one I told you external confirmation, one I told you recalculation, one you can do physical verification. If it is an asset, you can do physical verification. So what audit procedure, nature of audit procedure, कितना टाइम तक करना है, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ये तीनों डिटरमाइन करने के लिए आपको रिस्क असेसमेंट करना है. यू हैव टू डू रिस्क असेसमेंट. सो रिस्क असेसमेंट के लिए आपको फर्स्ट कंपनी को अंडरस्टैंड करना है, ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है, नेचर ऑफ द इंडस्ट्री को स्टडी करना है,
तभी पता चलेगा उस इंडस्ट्री में रिस्क क्या होता है. देन यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट internal control system, how effective and efficient the internal control system of the company is functioning, how they are, what are the procedures they have initiated to mitigate the risk. So first of all, management will take the responsibility. So second responsibility of the management is to establish appropriate internal control system that can reduce frauds and risks and errors. So to what is the एक second. So auditor has to evaluate internal controls, so how they are functioning. Then after evaluating of internal controls, he will understand the nature, timing and extent. He will determine the nature, timing and extent of audit procedures. Then he will, upon performing the audit procedures, he will obtain some information. That information is called audit evidence. Whatever audit evidence, he will analyze the evidence. After analyzing the evidence, he will form a conclusion. So after doing all this, I have arrived at the conclusion this debtor balance is correct. Then I will issue an opinion that the debtors are true and fair. Example I am giving, true and fair. So this is the whole process of audit, how we perform. But depending on the item we are checking, the procedure might change. For as I told, for assets we will do physical verification, and for debtors recalculation and external confirmation, and for sales we will cross verify with GST returns, external returns that has filed with government authorities. So this is the whole process of audit. This is the basic actually. So the features of audit, next feature, we have to evaluate internal controls and accounting controls. So without evaluation of internal controls, you cannot determine audit procedure. So we have to determine accounting and internal controls to determine audit procedure. So next feature may be So as I told, financial statements में management क्या करता है, representations करता है. Though representations are nothing but assertions, we will call it as assertion. The representations made by the management in the financials are called assertion. So each assertion को आप test करना पड़ेगा. Assertions may be completeness. I will list down the assertions. Assertion may be completeness, measurement, rights and obligation, occurrence, existence, presentation and disclosure, valuation. So let us discuss. They have disclosed an asset of 100 rupees. So what they are saying, we have an existence of an asset of 100 rupees. So we have an right, asset means right, we have a right on 100 rupees, and they have 100 rupees they have measured as per the in AS10 or something. They have made a measurement of the cost of the asset
and they have uh, measured and they have presented in the FS as 100 rupees. So once you verify an asset, you will test all these assertions, rights and obligation, existence, measurement, and valuation. Valuation matlab asset less depreciation, cost less depreciation method use करके how they are valuing the closing balance of the asset at the year end. These all you will check while doing all this. So your last point on the features of auditing: authenticity, the reliability and authenticity of assertions in the financial statements relating to enterprises. This is all the definition of SA 200. The entity may be profit oriented or not, whether it was required by law or not. These are you will test. 550. I'm just introducing the concept. I am in the first page itself. So what are the three features we have covered? First one, non-financial, financial. Second one, evaluation of internal and financial controls. And third one, assertions. Evaluation of testing the reliability of assertion so that we can express an opinion. So then after doing all this, if you have to evaluate something, you need to have established criteria. Let us it be material or not to test it. Established criteria. Then only you can determine it is correct or it is true and fair. The amount has been disclosed correctly. Then it might be standard requirement. The established criteria might be standard procedure. Anything it might be. Standard procedure or standard requirement or accounting standard, accepted principle. You can. So next one is established criteria. There should be an established criteria. So we have covered maximum points. And lastly, if you want to do all this, the auditor should be competent. How can you say this competent? With all the training and knowledge he has obtained throughout his professional journey. Then only independent qualified processing prescribed qualification. So the 5 points we have covered. Got it right? You are getting it. Is it any confusion? You can just auditor himself. That if auditor is a fraud, your company will go into okay. Then your shareholders will lose their money. Never, because with all these trainings, ICA or ICMI is trying to withhold the integrity of the profession. What they are establishing, the criteria, they are telling the standard procedures and standards they are setting, they are protecting the integrity. There are some ethical principles that you need to follow. Professional ethics you need to comply. If you do against those ethical principles, they will cancel your membership. They will suspend your membership for 20 years, 10 years, 5 years, depending on the crime you have done. Exactly. So we will leave the differences between accounting and auditing for now. We will discuss it later. So then we will cover to overall objectives of auditor. 552. So what are the overall objectives? We already covered overall objectives. Overall objectives of independent auditor. See, page number 553 at the ending. To obtain reasonable assurance whether financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion. So he will determine whether the FS are free from material misstatement. This is the first objective of the auditor. And the second, after determining all this, he will do reporting.
reporting in accordance and communicates as required by SCS, standards on auditing. So this is also important. I would request you to underline this. So next, objective of audit. Continuation. What are the two main objectives of audit? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव्स अलग है और ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स अलग है. ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वेदर ट्रू एंड फेयर व्यू, वेदर द एफएस मीन्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू. First objective. And second objective, it is ancillary to this. If you want to determine it is true and correct, you need to satisfy yourself as an auditor that they are free from material misstatements. Misstatements might be, that is, they are free from fraud and error. Misstatement is either due to fraud, intentional fraud होता है, नहीं तो किसी का गलती हो सकता है. So you need to ensure that they are free from material misstatement. The third management responsibility comes here. What is here? हमारा secondary responsibility होता है तो किसी का primary responsibility हो सकता है. Management का primary responsibility है prevention of frauds and errors. Prevention of frauds and errors. उन लोग इसीलिए internal control system को develop कर रहे हैं. एक उन लोग उसका business का risk समझ के एक अच्छा internal control system develop करना पड़ता है. And so primary objective and secondary objective we have covered, and there are other objectives as well. So now it comes the concept of users of FS. किसी एक हर एक यूजर का एक ऑब्जेक्टिव होता है. आपने अभी बोला है इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिसीजन लेना है, इसलिए एक रिलायबल फाइनेंशियल रिलायबिलिटी एनहांस करने के लिए हम ऑडिट करना चाहते हैं. सो वन मोर ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड आल्सो शेयर होल्डर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है. ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, उनका पैसा रहेगा या नहीं रहेगा, उसका रिटर्न कितना मिलेगा, वो सर्टिफाई हम वो चेक करके बता सकते हैं आपका कंपनी गोइंग कंसर्न में रहेगा. और गवर्नमेंट को हम ये भरोसा दे सकते हैं इन लोग टैक्सेस सही से पे कर रहे हैं. हम अगर कोई हमारा ऑडिट रिपोर्ट में अगर टैक्सेस सही से पे नहीं कर रहे तो हम क्या बोलते हैं, इन लोग एक क्वालिफिकेशन डाल देते हैं. दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्सेस हैव नॉट बीन पेड, दे आर ड्यू, नॉट पेड बाय द कंपनी. देयर इज कैरो रिपोर्ट्स, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर. उसमें क्या है कि 6 मंथ्स के लिए ऊपर कोई स्टैट्यूटरी ड्यूस है तो हम उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, क्यों अभी तक पे नहीं करना है. अगर उसमें भी क्लासिफिकेशन देना है कि डिस्प्यूटेड है या अनडिस्प्यूटेड है. डिस्प्यूटेड है तो उसको अलग से बाइफर्केशन देना है, अनडिस्प्यूटेड है तो उसको अलग से 6 मंथ ओवर ड्यू होने के बाद उसको रिपोर्ट करना है. इसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या होता है कि उन लोग को कर सकते हैं, अगर कोई क्वालिफिकेशन आए तो ये सही से ड्यूस पे कर रहे हैं. अगर आपका ऑडिटर गलत फ्रॉड है तो हम पूरा उसके ऊपर भी आता है. सो इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल्स को देख के उन लोग हमको फेयर रिटर्न मिल सकता है. आपका प्रॉफिट देखता है, ऑडिटेड प्रॉफिट देखने के बाद ये प्रॉफिट अच्छा है तो इन्वेस्टर डिसीजन लेके एक फेयर रिटर्न देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं, भरोसा के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स. एंड वर्कर्स क्या देखते हैं, अगर कंपनी का ऑपरेशंस बढ़ रहा है तो उनको कॉम्पनसेशन भी बढ़ेगा, फेयर कॉम्पनसेशन. हम अभी बोला है नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी देखता है. इसमें देखता है कि एज पर स्टैट्यूट के हिसाब से उन लोग को वेजेस, मिनिमम वेजेस, सैलरीज मिल रहा है या नहीं, वो कॉम्प्लायंस भी हम देखते हैं. एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से, एज पर द स्टेट मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से उन लोग को उस स्टेट में जो वेजेस मिलना है वो मिल रहा है या नहीं, वो सब देखते हैं. एंड अल्टीमेटली कंपनी उसका जो रिसोर्सेस के हिसाब से वो काम कर रहा है वो एनवायरनमेंट या सोसाइटी से ले रहा है.
जो हम अभी एक एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो नेचर से या कुछ रिसोर्स लेके मैन्युफैक्चर करना है, वो रिसोर्स इधर से आ रहा है। जो मैन्युफैक्चर करने के लिए पोल्यूशन लेबर यूज कर रहा है, उस सोसाइटी को पास में पोल्यूट कर रहा है, इसको मिटिगेट करने के लिए इन लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लाई कर रहा है या नहीं, ये भी हम, ये होल सोसाइटी को हम बोल सकते हैं कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी दे आर कंप्लाइंग CSR एक्टिविटीज करके। ये अदर ऑब्जेक्टिव्स है, दो मेन ऑब्जेक्टिव प्राइमरी सेकेंडरी के हिसाब से, ये अदर ऑब्जेक्टिव है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी आपको याद रखना पड़ेगा। और हाँ, अभी ये भी कवर हो गया आपका, अगर आप पढ़ने से आपको पता चलेगा इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट, ऑडिट क्यों करना है, सिग्निफिकेंस क्या होता है फॉर एक्सटर्नल, मतलब गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी को, उसका रिटर्न फिनेंशियल ऑडिटेड फिनेंशियल में देख के गवर्नमेंट को रिलायंस होता है कि रिटर्न जो फाइल हुआ है वो सही प्रॉफिट में टैक्स पे करके फाइल हुआ है। और बैंक्स को क्या होता है, लोन्स दे सकता है, इन लोग बिलीव करके इतना प्रॉफिट है हम इसको लोन दे सकते हैं, फिनेंशियल एनालिसिस कर सकता है, उसमें क्रेडिट एनालिसिस कर सकते हैं, तभी उन लोग लोन इंश्योरेंस मतलब कॉन्फिडेंस से दे सकते हैं ताकि उनका लोन रीपे होगा। जब भी ऑडिटेड फाइनेंशियल्स होगा वो प्रॉफिट वगैरह, जब भी लोन होगा ना, क्रेडिट एनालिसिस करके बैंक्स आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल्स ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स मांगेगा, क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल्स में उन लोग का रिलायंस है कि उसको प्रॉफिट में कवरिंग देखता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लोन प्लस इंटरेस्ट पे करेगा या नहीं, ये सब कैलकुलेट करने के बाद उन लोग आपको लोन कितना इश्यू कर सकता है, आपका प्रॉफिट के हिसाब से कितना पेमेंट कर सकते हैं, वो सब देखता है। एंड अल्टीमेटली सेल्स GST रिटर्न्स आप सर्टिफाई कर देता है, इतना रेवेन्यू है, रेवेन्यू GST, इतना रेवेन्यू की इतना GST होना चाहिए, गवर्नमेंट एनालिसिस कर देता है इतना GST पे किया है या नहीं, उन लोग एनालिसिस करके दे विल सेटिस्फाई देमसेल्फ, कॉन्फिडेंस उसको आता है ये सही से सेल्स टैक्स पेमेंट कर रहा है। ऑडिटर रेवेन्यू को एश्योरेंस देता है कि ये रेवेन्यू करेक्ट है, और ये भी करता है एक्चुअली, ये GST ऑडिट में करता है इसको कंपेयर करके। सो ये इसका भी कॉन्फिडेंस पे आता है ऑडिट में, GST ऑडिट में करता है वो, वही स्पेसिफिक ऑडिट है वो, इसलिए गवर्नमेंट को सही से स्टैट्यूटरी टैक्स वैट रिटर्न्स फाइल किया या एनुअल वैट रिटर्न फाइल करना पड़ता है, उसमें सारा ऑडिट करके फाइल करते हैं। और इंटरनल कंट्रोल्स का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, अगर ऑडिट करने से आपका फ्रॉड्स एंड एरर्स चेक कर देते हैं, सो यू विल अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, सो कंपनी लॉस से बचा सकता है। तो किसी एम्प्लॉय फ्रॉड किया वो फायदा उसका होता है, कंपनी को नहीं होता है। सो अगर फ्रॉड करने से मॉरल चेक, एम्प्लॉयज में भी एक मॉरल चेक होता है, ऑडिट में हम पकड़ सकता है, जैसे एक मॉरल चेक होता है एम्प्लॉय में। मॉरल चेक मतलब उसको थोड़ा डर लगता है, हम ऐसे ऑडिट में पकड़ सकता है हमको अगर फ्रॉड करने से, सो वो नहीं करेगा। और अदर एक्सटर्नल यूजर्स को क्या होता है, बिजनेस वैल्यूएशन में किसी ने एक बिजनेस एक्वायर कर रहा है, वो बिजनेस वैल्यूएशन में प्रीवियस देख के फ्यूचर कैश फ्लोस प्रोजेक्ट करेगा, तब फ्यूचर कैश फ्लोस के हिसाब से डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मॉडल ये अलग यूज करके उसको वैल्यू करेगा, कितना पे करना है, वैल्यूएशन में काम आता है। और अपना प्रॉफिट के हिसाब से देख के गुडविल वैल्यूएशन करता है, जब बेच रहा है किसी को, बिजनेस बेच रहे हैं, हमारा बिजनेस का वैल्यू इतना होता है, गुडविल वैल्यूएशन कर सकता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो सब। और पार्टनर्स कोई जा रहा है या आ रहा है सेटलमेंट करने में, वो भी हेल्पफुल हो जाता है।
और देन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. Inherent limitations of audit. So हम अभी डिस्कस किया है, हम ओनली मटेरियलिटी के हिसाब से ही ऑडिट कर देता है. मटेरियलिटी क्यों मटेरियलिटी? ऑडिटर अल्टीमेटली क्या कर रहा है, उसका एक प्रोफेशन है, वो चला रहा है, उसका ऑडिट फॉर्म चला रहा है. सो वो भी एक बिजनेस मतलब ऑक्यूपेशन में है. सो उसका भी अल्टीमेट गोल इज अर्निंग मनी. सो वॉट एवर ऑडिटर इज डूइंग, टाइम इज हिज मनी. टाइम एंड मनी, ये दोनों कॉस्ट एंड टाइम, ये दोनों इवेल्युएट करके करना है. वो जितना रिसोर्सेज यूज कर रहा है उतना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वो क्लाइंट से अर्न कर रहा है या नहीं, ये देख के वो क्लाइंट को उतना टाइम देता है. अल्टीमेटली उसका ही प्रॉफिट करना, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज मेकिंग प्रॉफिट. सो वो टाइम देता है, टाइम हिसाब से करता है. अगर टाइम देना है तो पूरा कवर करने का, अगर रिलायंस ऐसा बड़ा बड़ा कंपनीज में लैक्स में ट्रांजैक्शन चलता है, लैक्स मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर इन लैक्स एंड लैक्स में चलता है. सो उस हिसाब से देखने से उसका पूरा कवर करने में टाइम बहुत लगता है, इसलिए वो मटेरियलिटी यूज करता है. जिस चीज को ऑडिट करना है, मतलब डेटार्स को ऑडिट करना है, डेटार्स में कौन सा डेटार को ऑडिट करना है, ये सब करने के मटेरियलिटी यूज करता है. सो इसीलिए वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता है. और फर्स्ट पॉइंट मटेरियलिटी है. और सेकंड पॉइंट, सिंस ट्रांजैक्शंस आर इन लार्ज नंबर, ही विल यूज सैम्पलिंग टेक्निक्स. सो अगर एक डेटार को वेरीफाई कर रहा है तो उसका सैम्पलिंग टेक्निक्स वेरीफाई करता है. सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज करके वो एक ट्रांजैक्शन या सेल्स को 100 लाइन आइटम्स है, उसमें 10 या 20 को पिकअप करके वेरीफाई कर देते हैं. सैम्पलिंग टेक्निक्स हम बाद में देखते हैं, सैम्पलिंग प्रोसीजर यूज कर देते हैं. इसीलिए ही इज नॉट डूइंग complete audit, and complete audit is impossible actually. He cannot do complete audit, that is why he is unable to express absolute assurance. He can only give you reasonable assurance. ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वही रीजनेबल एश्योरेंस. तब आप इंटरनल इनहेरेंट लिमिटेशंस को मेंशन करना है. और थर्ड वन, इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल किसके लिए डिटरमाइन किया गया है? कौन डिटरमाइन किया? मैनेजमेंट. किसके लिए डिटरमाइन किया, मतलब इनिशिएट किया है इंटरनल कंट्रोल्स को? फ्रॉड एंड एरर्स को प्रिवेंट करने के लिए. और कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस आता है. स्पेशल ट्रांजैक्शंस हम कंट्रोल्स डिटरमाइन करता है. नॉर्मल ट्रांजैक्शन, डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए करता है. अगर कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन आ गया, उसको इस कंट्रोल माइट नॉट प्रिवेंट, ये प्रिवेंट नहीं कर सकते उस ट्रांजैक्शन को या उस कंट्रोल को, ये प्रिवेंट नहीं कर सकते. और कभी कभी क्या होता है, जिसके पास पावर होता है वो ओवरराइड करता है उस पावर को कुछ गलत करने के लिए. उस समय भी हम इतना डिटेल चेकिंग नहीं कर पाता है ऑडिट में, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है. हम कुछ टाइमलाइंस होता है, सितंबर 30 तक ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल करना है. इस टाइमलाइन की वजह से हम पूरा डिटेल चेकिंग नहीं कर सकते. इसकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं. ये थर्ड पॉइंट है. एंड फोर्थ वन, अल्टीमेटली टाइम एंड मनी कंपोनेंट, कॉस्ट एंड मनी, मतलब कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट कंपोनेंट. ये रिलेवेंस ऑडिटर चेक करके काम करेगा.
इसलिए वो पूरा एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देगा। अब पॉइंट्स एक बार चेक कीजिए। टेस्ट नेचर ऑफ ऑडिट मतलब सैम्पलिंग, and audit evidence available to the auditor is pervasive rather than conclusive। हम बात किया है ना, मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस चेक करेगा। मैक्सिमम मतलब he cannot give conclusive evidence, he can give pervasive, it is okay in all material aspects, so he can give pervasive audit evidence rather than conclusive audit evidence। and ultimately inherent limitations of internal control। इनहेरेंट लिमिटेशंस हम बोला है ना, ओवरराइड कर सकता है, और क्या बोला है, हाँ स्पेशल ट्रांजैक्शंस आ सकता है, और कभी कभी एम्प्लॉय ह्यूमन नेचर है, एम्प्लॉय एक वो भी गलती कर सकते हैं, ह्यूमन एरर हो सकता है वो। इसमें कोई कमेंट्स डाल देते हैं क्या? सो इनहेरेंट लिमिटेशंस कवर हो गया। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंट, कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते हैं शायद, कॉस्ट और सीएमए कर सकते हैं, हाँ टैक्स ऑडिट कर सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है, अदर स्पेशल एंगेजमेंट होता है, इनकम टैक्स ऑडिट करता है और जीएसटी ऑडिट करता है। सेक्रेटरियल सीएससी करता है। आपको इसलिए दिया है कि नॉलेज होना चाहिए कॉम्प्लायंस ऑफ लॉस के हिसाब से सेक्रेटरी ऑडिट किस सेक्शन में करता है। वो डिटेल ऑडिट का प्रोसीजर आपको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ इंटरेक्शन ऑफ द सेक्शन 206, सिर्फ इंटरेक्शन हमको भी वो पढ़ना पड़ता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट वो बाहर चलता रहेगा। अभी टैक्स ऑडिट में नहीं, स्टैट्यूटरी ऑडिट में कंपनीज का नहीं कर पाता है, कंपनीज के क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, वो इनकम टैक्स में सेक्शन 140 में मेंशन किया है एक्चुअली। हाँ वही एग्जैक्टली। आप कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते, कॉस्ट ऑडिट में आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। नहीं ये प्रोफेशन मतलब अपना अपना प्रोफेशन का इंटीग्रिटी होता है। ओके सो एग्जैक्टली, सो यू आर गेटिंग एवरीथिंग राइट। हम कुछ अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो ऑडिट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। हाँ ये दो चीज़ें हैं, प्रोफेशनल नहीं, हम एक एग्जैक्टली मिस किया है, थोड़ा आगे आइए। बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। सो ये क्या है कि ऑडिटर कुछ प्रिंसिपल के हिसाब से काम करना पड़ता है। जब वो इतना इन लोगों का रिलायंस जीतने का काम कर रहा है, एस्टैब्लिश करने का काम कर रहा है, तब कुछ प्रिंसिपल्स कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका काम करना पड़ता है। सो वन ऑफ द नहीं कुछ चीज़ें हैं किस हिसाब से वो प्रिंसिपल्स क्या क्या होता है। एक है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल एंड कॉम्पिटेंस, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस,
and expression of opinion. हाँ, planning, evaluation of accounting and internal controls, audit conclusion and reporting. So let us discuss integrity. जो बात करना है वो सीधा बात करना है, स्ट्राइट फॉरवर्डनेस से बात करना है. ऑडिटर जो मतलब क्लियरली बात करना है, स्ट्राइट फॉरवर्ड बात करना है. ऑब्जेक्टिविटी, जो काम करना है वो उसका ऑब्जेक्टिव की तरफ, मतलब ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम इसमें ये सही या नहीं ये एस्टैब्लिश करना है, ये एग्जिस्टेंट या नहीं ये एस्टैब्लिश करना है. आप बोला है मुझे मेरे पास आके किसी और के ऑब्जेक्टिव के नहीं, अपना ऑब्जेक्टिव या ऑडिट का ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम करना है. और इंडिपेंडेंस भी वही है, वो खुद किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं काम करना है. इम्पार्शियल होना चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए. इम्पार्शियलिटी मतलब किसी मैनेजमेंट के पार्शियल होकर काम नहीं करना है. वो जिस काम ऑडिट में ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए आया है, इसके लिए वो ऑडिट एविडेंस उसका कंक्लूजन होना चाहिए, उसका ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ेगा, खुद का ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ेगा. और नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जब ऑडिट मैनेजमेंट के पास फाइनेंशियल्स का अंडरलाइन ट्रांजैक्शन वेरीफाई करेगा, वो सारा बहुत इन्फॉर्मेशन उस क्लाइंट के हिसाब से गेन करेगा. वो कुछ होता है कि इंडस्ट्री में कंपटीशन, अगर जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इन्होंने गेन किया है वो किसी कॉम्पिटिटर के पास शेयर नहीं करना है. यही बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इसको गवर्न कर देता है. अगर इसका प्रॉफिट नहीं बोलना है, नहीं तो किसी इन्वेस्टर के पास इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा, ऐसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता. ये सब कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल के गवर्न करेगा. और स्किल एंड कॉम्पिटेंस अभी बोला है, जो जितना उसका प्रोफेशनल जर्नी में वो स्किल्स वगैरह एक्वायर करेगा, उस हिसाब से वो अल्टीमेटली उसका स्किल सेट एस्टैब्लिश करना है ट्रेनिंग में, और कॉम्पिटेंस उसका एजुकेशनल जर्नी में वो सब डेवलप करेगा. उस हिसाब से वो यूज़ करके वो काम करना पड़ेगा. और डॉक्यूमेंटेशन. सो अल्टीमेटली हम वर्क कर रहे हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि इस वर्क के सपोर्टिंग नहीं होता है, तो हम किसी को प्रूव नहीं कर पाता है कि हम कैसे काम किया है, वेदर वी हैव डन आवर वर्क इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग और एल्स गाइडेंस नोट्स इश्यूड बाय ICAI. उस हिसाब से हम काम किया है या नहीं है, और नहीं है तो कभी कभी इससे डिविएट करना पड़ता है. उस टाइम से वो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो किया है या नहीं, ये सब हम कभी कभी प्रूव करना पड़ता है. जब एक कंपनी में इन्वेस्टिगेशन आ गया, इसका ऑडिटर कौन है, जब इसमें भी एक ये आ सकता है, ये सही से ऑडिट किया है या नहीं, ये क्वेश्चन अराइज कर सकता है. ये क्वेश्चन अराइज करने के बाद ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम ऑडिट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारा काम किया है. सो हाउ ही कैन प्रूव दिस? ओनली थ्रू डॉक्यूमेंटिंग व्हाट ही हैज़ डन, हाउ ही हैज़ डन, कि क्या प्रोसीजर फॉलो है, कि कितना रिस्क असेस किया है, इंटरनल कंट्रोल्स उसमें असेस किया है या नहीं, पूरा प्रोसेस ऑफ ऑडिट वो सब उसमें डॉक्यूमेंट करना पड़ता है. एक अकाउंट्स रिसीवेबल को ऑडिट कर रहा है, उसमें कंट्रोल्स क्या है हम असेस किया है, उसका प्रोसीजर क्या डिटरमाइन किया है हम, वो प्रोसीजर हमको सफिशिएंट लगा है, और स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर कुछ डिविएट हुआ है, क्यों डिविएट हुआ है, ये सब मेंशन करना पड़ेगा. इसमें आप डॉक्यूमेंट करके रखना है. ये डॉक्यूमेंटेशन आपको 7 years तक मेंटेन करना पड़ता है. एज पर SCA 230 ये बोलता है कि इसको 7 years तक मेंटेन करना पड़ता है. और कभी कभी किस काम करना है, विद इन ए टाइम करना है, तो प्लानिंग अल्टीमेटली ज़रूरी है. इसलिए प्लानिंग भी एक प्रिंसिपल होना चाहिए. और ऑडिट एविडेंस, अल्टीमेटली हम ऑडिट एविडेंस गैदर कर देते हैं. ऑडिट एविडेंस कैसे होना चाहिए? whenever you get an audit evidence, it should be sufficient and appropriate. ये आप डिटरमाइन करना एज एन ऑडिटर, आप अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके डिटरमाइन करना पड़ेगा. प्रोफेशनल जजमेंट
मतलब आप जो नॉलेज आपने एक्वायर किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज एक्वायर किया, मतलब अंडरस्टैंडिंग आपने एस्टेब्लिश किया है, उस हिसाब से आप अगर अकाउंट्स रिसीवेबल ऑडिट कर रहे हैं, जिसके ऑडिट करने के बाद आप जो इन्फॉर्मेशन अपडेट कर लिया है वो आपको सेटिस्फैक्टरी लग रहा है या नहीं, ये ठीक है या नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन आपको एस्टेब्लिश करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की तरफ से। सो व्हाट इज सफिशिएंट, व्हाट इज अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का कॉन्सेप्ट में हम वो डिटेलली पढ़ लेते हैं। हम ये इवैल्यूएट करना है वेदर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड, एंड अल्टीमेटली अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल से इवैल्यूएट करना है, क्योंकि उसी से हम नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को डिटरमाइन कर देता है। एंड कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद आप कंक्लूजन ड्रा करेगा, कंक्लूजन से रिपोर्ट करना पड़ेगा। कंक्लूजन जो भी हो सकता है, आप अगर कुछ क्वालिफिकेशन, मतलब ये रिपोर्ट में ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस कर देते हैं, एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन होता है। व्हाट इज अनक्वालिफाइड ओपिनियन, सारा करेक्ट लग रहा है हमको, सब ठीक लग रहा है, देन वी विल इश्यू क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड मतलब ठीक लग रहा है फिर भी इतना, मतलब कुछ चीजें गलत है, वो इतना स्प्रेड नहीं हुआ है, मतलब सारा चीज में इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, ऐसा नहीं है। अकाउंट्स रिसीवेबल गलत है, अकाउंट्स पेएबल गलत है, ऐसा नहीं है, एक ही चीज में गलत है, तब उसको आप लिख सकते हैं एआर में हमको थोड़ा गलती दिख रहा है, क्वालिफिकेशन एआर में आप डाल रहे हैं, इसको क्वालिफाइड ओपिनियन बात करते हैं। हमको स्टैट्यूटरी ड्यूज में गलत दिख रहा है, क्वालिफाइड ओपिनियन डाल देते हैं। एंड अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आपको ट्राई किया, ऑडिट प्रोसीजर ट्राई किया, सब ट्राई किया, ऑडिटर ने इन्फॉर्मेशन सही, मतलब कंपनी ने इन्फॉर्मेशन सही से नहीं दे रहा है, तब आपको क्या हो सकता है, यू आर अनेबल टू डिटरमाइन सफिशिएंट appropriate audit evidence has been obtained, then you will ultimately obtain disclaimer, I am not able to express an opinion on it, I am unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence। यही है। सो बेसिक प्रिंसिपल भी कवर हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है एक इस कॉन्सेप्ट में। और ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन, टाइम कितना हो गया, 7-6 और 15 मिनट्स है, ओके है। सो इतना डिटेल नहीं जा सकता है। क्लासिफिकेशन स्टैट्यूटरी पॉइंट ऑफ व्यू में रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी में डिवाइड हो गया। सो स्टैट्यूटरी क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट किसी के स्टैट्यूट के अंदर बोला है, इनकम टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर बोला है, सारा कंपनीज का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, ऑडिट करना है, वो भी कंपनीज एक्ट के अंदर बोला है। तो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर कुछ ऑडिट करना के बोला है, बैंक्स आरबीआई के एक्ट के अंदर ये बोला है। सो अगर कुछ एक्ट के अंदर बोला है तो उसको स्टैट्यूटरी मानते हैं, और बेनिफिट सारा वही होता है, शेयर होल्डर को उसका रिले करना है या नहीं करना है, बेनिफिट्स फॉर इन्वेस्टर्स, वैल्यू शेयर्स, वही होता है सारा बेनिफिट्स जो लिखा है, वेरियस पर्पसेस, क्रेडिबिलिटी, वो सारा वही होता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किया है या नहीं। और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, नॉन स्टैट्यूटरी मतलब ये वॉलंटरी कर रहा है, वॉलंटरी क्यों करेगा, इधर वॉलंटरी क्यों करेगा ऑडिट, नॉन स्टैट्यूटरी और वॉलंटरी ऑडिट। कभी कभी पार्टनरशिप के अंदर कुछ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स आता है, कभी कभी डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो गया, उस टाइम में अगर ये वॉलंटरी रिटायरमेंट, मतलब ये ऑडिट होने से जो जा रहा है उसको भी कॉन्फिडेंस होता है हम सही से शेयर लेके जा रहा है, जो आ रहा है हम सही से शेयर पे करके आ रहे हैं, इसलिए ऑडिट करते हैं। और उसका बेनिफिट भी होता है कि डिडक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, अगर उसका कंपनी में कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं तो वो भी डिटेक्ट हो सकता है। और किसी बैंक्स ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपना फाइनेंशियल से ऑडिट कर दो,
ताकि हमको रिलायंस एस्टेब्लिश हो जाएगा, ताकि हम लोन दे सकते हैं आपको। इसलिए नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट कभी कभी पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड अदर्स कर देते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट का डिफरेंसेस क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब एक्ट के अंदर आ रहा है, सो इट इज़ कंपलसरी। ये नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट वॉलंटरी कर रहा है, सो इट इज़ नॉट कंपलसरी। स्टैट्यूटरी ऑडिट ओनली अगर वो स्टैट्यूटरी को स्पेसिफिक फंक्शन को स्पेसिफिक पर्सन को मेंशन किया है तो वही कर सकते हैं। अगर कंपनी एक्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट को मेंशन किया है वही कर सकता है। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट कोई भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकते हैं, इसे रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टैट्यूटरी में स्कोप स्टैट्यूट डिटरमाइन कर सकता है, नॉन स्टैट्यूटरी में जो काम दे रहा है वो डिटरमाइन करेगा। अगर वो जिस एरिया का डाटा हम नहीं देंगे, बात कर रहे हैं, तो हम नहीं ऑडिट कर सकते उसको। सो हम इसको इंडिपेंडेंस होता है स्टैट्यूटरी में, उसमें इंडिपेंडेंस नहीं होता है। कोई इंटरनल बंदा भी स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब वॉलंटरी ऑडिट कर सकते हैं। हम इंटरनली एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करके सारा ऑडिट कर दो ऐसे भी बोल सकते हैं। सो इंडिपेंडेंस नॉन स्टैट्यूटरी में नहीं हो सकता है। और इसे बोल रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट को इसमें ऑब्लिगेशन होता है, ओनली इंटरनली पब्लिश कर सकते हैं इन लोग नॉन स्टैट्यूटरी में, एम्प्लॉयज एंड प्रोमोटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट अभी बोला है ना, पार्टनरशिप फॉर्म्स में कंपनीज में नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होता है। अगर चाहिए तो एक सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली ऑडिट कर सकता है, वो इंटरनली हो सकता है। एक्चुअली कंपनीज के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। पार्टनरशिप के लिए मैंडेटरी नहीं है, किसी के एक्ट के अंदर नहीं आता है ना गवर्नमेंट। पार्टनरशिप वही है, हाँ 50 वो कैपिटल है ना, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ वो रजिस्टर करना पड़ेगा, वो कंपनी एक्ट के अंदर आता है ना। कुछ कैपिटल लिमिट्स बोला है, पार्टनरशिप का नहीं है ना, वो कैपिटल के नहीं है, वो एलएलपी का होगा। कुछ पार्टनरशिप का कोई लिमिट्स नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, उसका इंटरनल डिसीजन है, कभी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। हो सकता है वो लोग इंटरनल, उसका मनी है, आप क्या मतलब आप समझ सकते हैं ना, उसका इंटरनल मनी है। कंपनी में शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करता है, पार्टनरशिप में सिर्फ पार्टनर्स आप चार का मिला के एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन खोल सकता है। हाँ वो अगर वही हम बोल रहे हैं ना, अगर टैक्स ऑडिट हो सकता है उसका लिमिट के हिसाब से। टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर अगर 44 AB के उसके अंडर आ रहा है तो वो टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा, वो अलग बात है। हम स्टैट्यूट किसी स्टैट्यूट के अंदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रेवेन्यू उनको 1 करोड़ क्रॉस हो गया, उस हिसाब से वो टैक्स ऑडिट कर सकते हैं, करना पड़ेगा। और जीएसटी ऑडिट भी 5 करोड़ के ऊपर चले गए, वो जीएसटी ऑडिट भी करना पड़ेगा। वही है, ठीक है, कल कंटिन्यू करेगा हम ये क्लासिफिकेशन कंटिन्यूस ऑडिट। हाँ कल ये टाइप्स ऑफ ऑडिट क्लोज करके नेक्स्ट चैप्टर सैटरडे को। हाँ नेक्स्ट क्लास इज सैटरडे एक्चुअली।